ગુજરાત એટીએસે આજે અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી આઈએસના 4 આતંકવાદીની ધરપકડ કરી છે। આ અંગે મળતી માહિતી પ્રમાણે મૂળ શ્રીલંકન નાગરિક અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવ્યા હોવાની સેન્ટ્રલ એજન્સીના ઇનપુટ બાદ આ ચારેય શખ્સને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે। ગુજરાત એટીએસે મોહમ્મદ નુસરત, મોહમ્મદ નફરાન, મોહમ્મદ ફારિસ અને મોહમ્મદ રસદીનની ધરપકડ કરી છે। ગુજરાતમાં અથવા અન્ય રાજ્યોમાં કોઈ કનેક્શન છે કે નહીં એ શોધવાની પણ પ્રક્રિયા એટીએસે હાથ ધરી છે। આ આતંકીઓ હવાઈ માર્ગે ગુજરાતમાં પ્રવેશ્યા હતા। તેઓ ચેન્નઈ એરપોર્ટથી ફ્લાઇટમાં અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવ્યા અને 2 અઠવાડિયા પહેલાં જ ગુજરાત એટીએસને આતંકીઓ આવવા હોવા અંગે બાતમી મળી હતી, જેને પગલે એટીએસે રેલવે સ્ટેશન સહિતના સ્થળોએ વોચ ગોઠવી। પકડાયેલા આતંકીઓ પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ કરતા હતા। આતંકીઓ તામિલ ભાષા બોલતા હોવાથી તેમના મનસૂબા જાણવા દુભાષિયાની મદદ લેવામાં આવી હતી। ટ્વિટર મારફતે ચારેયની પૂછપરછ કરતા જાણવા મળ્યું કે તેઓ પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન આઈએસના સક્રિય સભ્યો છે અને અબુ બકર અલ બગદાદીના અનુયાયીઓ છે, તેમજ તેઓનો હેન્ડલર અબુ પાકિસ્તાની છે। આઈએસના હેન્ડલર પાકિસ્તાની અબુએ તેઓને જણાવ્યું હતું કે તેઓ હથિયારના ફોટા તથા હથિયારો જે જગ્યાએ છુપાવ્યા છે તે જગ્યાના ફોટા તથા તેનું લોકેશન પ્રોટોન ડ્રાઈવ તથા પ્રોટોન મેલ પર શેર કરશે અને તે જગ્યાએ જઈ હથિયારો મેળવી લેવા અને ત્યારબાદ આ હથિયારોનો ઉપયોગ કઈ જગ્યાએ અને કયા ટાર્ગેટ પર કરવાનો છે તેની જાણ પણ કરવામાં આવશે। ત્યારે શ્રીલંકન નાગરિક હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષા બરોબર જાણતા ન હોવાથી તમિલ ભાષાના જાણકાર મારફતે તેમની પૂછપરછ કરતા તેમણે મોહમ્મદ નુસરત, મોહમ્મદ નફરાન, મોહમ્મદ ફારિસ અને મોહમ્મદ રસદીન હોવાનું જણાવ્યું છે। ચારેય શ્રીલંકન 19 મે 2024ના રોજ સવારે કોલંબોથી ચેન્નઈ એરપોર્ટ આવ્યા અને ચેન્નઈ એરપોર્ટથી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ નંબર 6E848માં અમદાવાદ એરપોર્ટ આવવાના હતા। તારીખ 19 મે 2024ના રોજ 8:10 વાગ્યે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા। બોર્ડિંગ અંગે વેરિફિકેશન થતાં જ ગુજરાત એટીએસના એસપી કે સિદ્ધાર્થ, કે પટેલ અને ડીવાયએસપી હર્ષ ઉપાધ્યાય અને SL ચૌધરીના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમો અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ચારેયની અટકાયત કર્યા બાદ પૂછપરછ કરવા ગુજરાત એટીએસ ખાતે લેવામાં આવ્યા। ગુજરાત એટીએસના ડીવાયએસપી હર્ષ ઉપાધ્યાયને 18 મે 2024ના રોજ બાતમી મળી હતી કે 4 વ્યક્તિ મોહમ્મદ નુસરત, મોહમ્મદ નફરાન, મોહમ્મદ ફારિસ અને મોહમ્મદ રસદીન જે શ્રીલંકાના નાગરિકોને રહેવાસી છે, તેઓ પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન આઈએસના સક્રિય સભ્યો છે અને તેઓ આઈએસની કટ્ટર વિચારધારા ધરાવે છે। તેઓ ઇસ્લામિક સ્ટેટના નેજા હેઠળ ભારતમાં કોઈ સ્થળે આતંકવાદી કૃત્યને અંજામ આપવાનું કાવતરું ઘડી રહ્યા છે અને આ બાતમીના આધારે ગુજરાત પોલીસે 4 આતંકીઓની ધરપકડ કરી છે। तो अहमदाबाद के पास एक जगह है नाना चिरोड़ा, हिम्मतनगर हाईवे, वहां का एक लोकेशन था और उस लोकेशन पे कुछ ऐसे वस्तु रखे हुए जिसके फोटोग्राफ भी हमें उनके मोबाइल की गैलरी में मिले, जिसके बारे में हमने पूछपरछ किया तो उन्होंने ऐसा बताया कि अबू ने उन्हें बताया है कि इस जगह पे जाओ और यहाँ पे तुम्हें हथियार मिलेगा और उस हथियार को से तुमको आतंकवादी कृत्य को अंजाम देना है। जिस पूछपरछ के दौरान ये इन्फॉर्मेशन मिला तो एटीएस के अधिकारी पंचों के साथ मोबाइल फोन की गैलरी में जो लोकेशन था वो लोकेशन पे इनको ले जाया गया और उस लोकेशन की छानबीन की गई तो वहां से बिन वारसी हालत में 3 पिस्टल मिले। हर एक पिस्टल के हैंडल पर एक स्टार बना हुआ है और उसका जो नंबर है, जो मेक है, उसे खरोंच दिया गया है ताकि कोई पढ़ नहीं पाए। तीनों पिस्टल में कार्ट्रिजेस भरे हुए थे, 2 में 7 कार्ट्रिज थे और 1 में 6 कार्ट्रिज था। टोटल 20 कार्ट्रिज भी हमें वहां से मिले और ये 20 कार्ट्रिज के ऊपर फाटा लिखा हुआ है, FATA लिखा हुआ है, विच इज बेसिकली फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया, जो पाकिस्तान में है। तो पिस्टल के हैंडल के ऊपर जो बना हुआ स्टार और कार्ट्रिज पे लिखा हुआ फाटा और साथ ही साथ वहां पर पिस्टल और कार्ट्रिज के उपरांत एक आईसिस का फ्लैग भी मिला है, जिसके बारे में पूछा गया तो इन लोगों ने ऐसा बताया कि उन्हें कहा गया था कि आप जो भी कहीं भी आतंकवादी कृत्य करेंगे तो दैट एक्ट ऑफ टेरर के बाद
आप ये आईसिस का झंडा वहां छोड़ के आए। तो उस जगह से हमें 3 पिस्टल, 20 कार्ट्रिजेस और आईसिस के फ्लैग बरामद हुए, जिसे लेकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम वापस आई और इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में लेकर एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में दाखिल किया गया है, जिसमें अनलॉफुल यूएपीए, आईपीसी और आर्म्स एक्ट, इन तीनों कायदा के अलग अलग सेक्शंस के तहत एफआईआर एटीएस में दाखिल की गई है। इस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन एटीएस के डीवाईएसपी श्री वीरजीत परमार को दिया गया है, जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी ये चारों आतंकवादी हमारे पास हैं, उनकी पूछपरछ की जा रही है। उनके पूछपरछ में तमिल के जानकार, भाषा के जानकार लोगों की मदद ली जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में के डीवाईएसपी श्री हर्ष उपाध्याय को 18 मई को जो माहिती मिली थी, उस माहिती के आधार पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्ट्रेटेजाइज किया, ऑपरेशनलाइज किया और सभी नियम के दायरे में इन 4 लोगों को और उनके पास से वेपन्स, कार्ट्रिजेस और फ्लैग आईसिस का हस्तगत किया गया है। एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को सफलता मिली। धन्यवाद। હુમલો કરવા માટે જે મોબાઈલમાં બીજેપી और आरएसएस के लीडर्स टारगेट કરવા માટે, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मोबाइल्स की स्क्रूटनी की जा रही है। अभी यह आपको मैंने जो भी माहिती दी है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, वो एकदम प्राथमिक है। अभी हम मोबाइल्स को भेजेंगे फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में, लेकिन अभी तक जो बताया गया है कि इनके अलग अलग आतंकवादी कृत्य करने के लिए जो इनको बोला गया था, उसमें लीडर्स भी हो सकते हैं, जगह भी हो सकती है। ये पूरा पूछपरछ में हमको सर, आर दे सिनारीज और तमिल्स? दे आर तमिल्स। થેન્ક યુ વેરી મચ। સર, 2040 પહેલા 2019માં લોકો એનટીજીના સભ્યો હતા, જે શ્રીલંકાએ બેન કર્યું માટે તેઓ આઈસીસ સાથે જોડાયા। એને લઈને એ વાત સાચી છે કે અત્યાર સુધીની પૂછપરછ દરમિયાન એ પણ આપણને જાણવા મળ્યું છે કે આ 4 તો નહીં, પરંતુ એમાંથી 2 કે 3 એવા છે જેનો પણ એક ક્રિમિનલ એન્ટિસિડન્ટ્સ છે અને અગાઉ એ લોકો ક્રિમિનલ એક્ટિવિટીઝમાં, ડ્રગ કેસમાં પણ પકડાયેલા છે, પણ એની વિગત આજે આપણી પાસે નથી। એ બધી તપાસ કરવી છે। और मोहम्मद रसदीन, ये 4 लोग आतंकवाद संस्था, प्रतिबंधित संस्था इस्लामिक स्टेट के सक्रिय सभ्य हैं और किसी भी आतंकवादी कृत्य करने के लिए भारत में कोई भी जगह यह कृत्य करने के लिए वो 18 तारीख को या 19 तारीख को ट्रेन से या हवाई जहाज से अहमदाबाद आए। ऐसी प्राथमिक इंफॉर्मेशन डीवाईएसपी एटीएस श्री हर्ष उपाध्याय को मिली। उन्होंने इस इंफॉर्मेशन की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिया। ये जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसको एनालाइज किया गया और इंफॉर्मेशन को ऑपरेशनलाइज करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई गई। उस स्ट्रैटेजीज के तहत एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की अलग अलग टीम्स की रचना की गई और दक्षिण की ओर से आने वाले 18 और 19 तारीख को जितने ट्रेन्स आते हैं, जितनी फ्लाइट्स आती हैं, उन सब के पैसेंजर्स के लिस्ट को
का अभ्यास किया गया और इस अभ्यास के दौरान एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की एक टीम को सफलता मिली और पैसेंजर लिस्ट में उन्हें मालूम चला कि 19 तारीख को अहमदाबाद में एक फ्लाइट आने वाली है और उस फ्लाइट में ये 4 नाम वाले जो व्यक्ति हैं वो सेम पीएनआर का उन्होंने टिकट लिया है और वो 19 तारीख को अहमदाबाद आने वाले हैं, चेन्नई से आने वाले हैं। इसके बारे में फिर और ज्यादा जांच पड़ताल किया गया तो ये भी मालूम चला कि ये लोग कोलंबो से चेन्नई 19 तारीख को उन्होंने टिकट बुक कराया है, सेम पीएनआर में बुक कराया है। 19 तारीख के सुबह वो 3 बजे चेन्नई पहुंच गए और उसके बाद शाम का फ्लाइट लेकर चेन्नई से वो अहमदाबाद आए और अहमदाबाद 19 तारीख के शाम को करीब 8 सवा 8 बजे यहां लैंड किए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की अलग अलग टीम्स की रचना की गई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उनको अलग अलग स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे डिप्लॉय किया गया। जैसे ये 4 लोग एयरपोर्ट पे आए उनको डिटेन करके प्राथमिक पूछपरछ की गई। प्राथमिक पूछपरछ में उनका जब नाम पूछा गया तो इंफॉर्मेशन में जो 4 नाम मिले थे वो नाम कंफर्म हुए। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद एयरपोर्ट से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ऑफिस में लाया गया। उन्हें अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा नहीं आती है, वो सिर्फ तमिल बोलते हैं, इसलिए रातों रात तमिल भाषा के जानकार व्यक्तियों की व्यवस्था की गई और उनके मदद और सहयोग से इन 4 लोगों का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ऑफिस में रात को इंट्रोगेशन शुरू किया गया। इंट्रोगेशन के दरमियान ये मालूम चला कि ये 4 लोग में से एक मोहम्मद नुसरत सन ऑफ अहमद गनी, उम्र वर्ष 33, मूल रहवासी निगम्बू। दूसरे मोहम्मद फारिश सन ऑफ मोहम्मद फारूक, उम्र वर्ष 35, कोलंबो के रहवासी। तीसरे मोहम्मद नफरान सन ऑफ नैफर, उम्र वर्ष 27, जो कोलंबो के रहवासी हैं। और नंबर 4 मोहम्मद रशदीन सन ऑफ अब्दुल रहीम, उम्र वर्ष 43, वो भी कोलंबो के रहवासी। ये 4 लोगों की पूछपरछ की गई। पूछपरछ के दरमियान उनके पास से 2 मोबाइल फोन्स, उनके पासपोर्ट्स, कुछ श्रीलंका की करेंसी, कुछ भारत के करेंसी मिले और तमिल भाषा के जानकार इंटरप्रेटर को साथ में रख के उनकी जब पूछपरछ हुई तो उन्होंने पूछपरछ के दरमियान एटीएस के अधिकारियों को यह बताया कि इसी साल फरवरी में पाकिस्तान के रहवासी अबू, जो ओरिजिनली श्रीलंका के हैं लेकिन अब पाकिस्तान में रहते हैं, अबू के साथ वो फरवरी 2024 में संपर्क में आए थे। ये अबू जो पाकिस्तान में रहता है वो आईसिस का लीडर है और उसके साथ फरवरी से लेकर अभी तक संपर्क में रहे ये 4 लोग और आईसिस की जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी पे संपूर्ण ढंग से वो रेडिकलाइज हो गए और रेडिकलाइज होने के बाद भारत में किसी भी जगह पे वो टेररिस्ट एक्ट करने के लिए उन्होंने अपना तैयारी की। अबू ने उनके लिए श्रीलंकन करेंसी में 4 लाख रुपया का भी व्यवस्था किया उन्होंने और फिर उन्होंने, जैसा मैंने पहले बताया, कि कोलंबो से चेन्नई और चेन्नई से वो अहमदाबाद आए। उनकी जो मोबाइल फोन्स मिली थी उस मोबाइल फोन के गैलरी में कुछ हमें वीडियोस मिले हैं, कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं, जिनके ऊपर से यह साबित होता है ये 4 लोग जो है वो आईसिस के आइडियोलॉजी से पूरी ढंग से रेडिकलाइज हो गए हैं। आईसिस आप जानते हैं कि एक प्रतिबंधित
आतंकवाद संस्था है और उस संस्था का सभ्य होना भी एक गुनाह होता है। इसके साथ साथ जब अधिक बारीकाई से